the government is looking for is somebody who solves the problem. थ्योरी देने का क्या फायदा है? लेट मी सॉल्व ए प्रॉब्लम. एवरीबडी इज नॉट सपोज्ड टू नो एवरीथिंग. कि सबको साथ लेके चलो, कॉन्फिडेंस लेके चलो, इज ऑलवेज बेटर. जो फील्ड की फीडबैक है वो एक पॉलिटिशियन को हमारे से बहुत ज्यादा पता है. एवरी डे यू यूज्ड टू लर्न समथिंग न्यू and interesting. If I were to define IAS, it is not meeting targets, it is man management. Be different. Don't be a run of the mill. The future cannot be defined by a civil servant. It is a mixture of both the political governance, the civil governance, as well as the citizen. The grassroots people love me. Welcome to another episode of Believe in Future Amazing Mentor, where we bring you insight and inspirations from trailblazers who have shaped industries, governance, and lives. Today we have with us a distinguished personality, Mr. Ankur Gupta, a 1990 batch IAS officer who has served in key leadership positions in Haryana's government. His exemplary career spanned various pivotal roles, including leading public work, agriculture and farmer welfare, food and civil supplies, civil aviation, and now the Department of Personnel as an additional chief secretary. With over 3 decades in civil service, his dedication has contributed significantly to governance and administration. We are honored to have him with us today, sharing his incredible journey to inspire young minds who wish to serve nation. Welcome, sir, to our show. Thank you so much, Gaurav. My pleasure, sir. So we will start from your childhood. So can you take us back to your childhood? What were your dreams and inspiration as a child? Gaurav, I grew up in a very small town, and in the first standard, nobody knows this, I was failed by the school. So taking pity on me, they promoted me to second standard, and then as in those days, now we have different standards. My father simply took a stick, made me naked, made me stand on the road and bet me there. And after that, he spent hours and hours with me, leaving everything, just teaching me. And then I never stopped coming first. To the extent, if I got 99.9% marks, that would be a disaster. So learned the hard way, but I am so thankful to my parents. Whatever am I today is just because of them. Now the standards are different. I don't know whether they're correct or not, but discipline does pay. So after doing that, since my father was an engineer, I obviously, as you know, in those days there was no 12th. We used to have prep, which is 11th. From 11th, gained top, went to engineering, did my mechanical engineering, and there I wanted to become an IAS officer because my father wanted to be. Hua kya, one day when my father got promoted as superintending engineer, I asked him, Daddy, इसके बाद कर chief engineer, इसके बाद engineer chief. मैं कहा Daddy इसके बाद कि बेटा इसके बाद secretary बनते हैं. मैं कहा आप कब बनोगे? बेटा मैं कभी नहीं बन सकूंगा, वो सिर्फ IAS ही बन सकते हैं. वो चुप गई बात मेरे को. तो मुझे था कि अब IAS बनना है first. तो मेरा बड़ा क्लोज एक फ्रेंड था इंजीनियरिंग में. उन दोनों XLRI के फॉर्म्स बिक रहे थे एडमिशन के लिए, भरते 30 रुपए का. अच्छा, हम गौरव बटुए में अगर 1.5 रुपया होता था बड़े खुश होते थे, क्योंकि 45 पैसे में ब्रेड पकौड़ा आ जाना, 25 पैसे में चाय आ जानी, फिर भी 50 पैसे बच जाने. तो वो मेरा फ्रेंड था, उसको तो डेली रट्टे मारता था, वो वोकैबुलरी कि मुझे जाना IIM में, मुझे जाना IIM में. तो एक दिन आया कि भाई मैंने 30 रुपए का तेरा फॉर्म भर दिया. मैं कहा मैं नहीं दूंगा पैसे. कहना ना, मेरी नकल कराने के लिए, तू मेरी नकल करा दी. नो, एज लक वुड हैव इट, आई वेंट देयर एंड ट्राई टू हेल्प हिम, बट ही नेवर क्वालिफाइड. आई क्वालिफाइड. मैंने फिर भी ज्वाइन नहीं करना था. माई फादर्स बैचमेट फ्रॉम इंजीनियरिंग, ही वॉज प्रेसिडेंट ऑफ टेल्को, टाटा मोटर्स, जमशेदपुर. संडे का दिन था, वो आए हुए थे कि बेटा क्या कर रहे हैं, कि इंजीनियरिंग कर ली है एंड प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर IAS. और उसको कोई XLRI है, उसकी कॉल आई हुई है. सो व्हाट इज इट डूइंग अबाउट इट? अरे कुछ भी नहीं कर रहा. XLRI इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स, ज्वाइन कराओ. तो डैडी ने मुझे आवाज मारी, बेटा दिखाइयो लास्ट डेट कब है. मैं कही तो कल है ज्वाइन करने की, कि जाओ ज्वाइन करो. सो मैंने ज्वाइन कर लिया. तो लेकिन वो था कि IAS बनना है, एंड ऑल थैंक्स टू माई पेरेंट्स. मुझे तो पता भी नहीं था, उन दोनों बच्चों को पता भी ज़्यादा नहीं होता था, ना कोई आपके इंटरनेट, ना गूगल, ना
वो ना कुछ नहीं होता था. Then I joined the advertising world after completing my. I did my specialization after engineering in MBA in marketing and finance. तो marketing का शौक था. I joined the advertising world. IAS की तैयारी चलती रही. तो that's how it progressed. तो अगर वो इंसिडेंस नहीं हुआ होता जो आपने बताया कि मैंने अपने पापा से पूछा कि इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, तो क्या आज आप इस कुर्सी पे बैठे होते? और अगर नहीं तो फिर क्या होता? गौरव, आप मेरे को ना इमोशनल कर रहे हो. माई फादर रिटायर्ड इन 92. 90 में मैं IAS में आ गया. मैं कहा डैडी अब आपको मेरे को सर करना पड़ेगा. गौरव, जो कुछ हूँ अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ. मुझे कुछ पता ही नहीं था. हम बच्चों को क्या पता होता था उन दिनों. एक्सपोजर टू द वर्ल्ड वाज लिमिटेड थ्रू आवर पेरेंट्स आईज. तो IAS तो मुझे वो चाहते ही थे, लेकिन मेरा ये बड़ा था कि आई वॉज वेरी क्लियर. IAS बनना कोई गारंटी तो है ही नहीं. यू नो, लैक्स एंड लैक्स सेट. बट इन दोज डेज, नाउ आई एम टॉकिंग ऑफ 80s, the best combination for a private sector was engineering and MBA. वो दोनों मेरे पास थी with very good marks and from the best institutes. तो मेरे पास बैकअप था. ये ना सही तो वो सही. जब मैं वहां से निकला XLRI से, तो मेरे को ऑफर मिली बॉम्बे, मारुति 800, ये फ्लैट 30,000 रुपये तनख्वाह. That was a world, but भगवान को शॉर्ट मंजूर था. तो अकॉर्डिंग टू यू, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने टाइम की बात करें, देन parents were allowed to beat us and they used to beat us. That was a ritual. और अगर बहुत दिन हम नहीं पिटते थे तो एक सुनने को मिल जाता था, लग रहा है बहुत दिन से पिटे नहीं हो. पर if you talk about today's generation, parents do not beat their children, whether it's male or female. So what would be your suggestion how to control and put discipline in the children in the coming generation? पर बीटिंग की तो बात छोड़ ही दो. आज तो ये हो गया है कि आपके बच्चे, अगर आप उनको 2 घंटे इंस्टा से अलग कर लो तो आपकी जान के दुश्मन बन जाते हैं. यू आर नॉट माई फ्रेंड. बाकी मेरे साथ 6-6 घंटे लगे रहते हैं इंस्टा पे. तो द डायनेमिक्स हैव कंप्लीटली चेंज्ड. बट टू बी ऑनेस्ट, आजकल के बच्चे शायद इससे सीख भी बहुत रहे हैं. अगर इससे बिगड़ रहे हैं तो सीख भी रहे हैं. दे आर मच मोर टेक सेवी, दे हैव मच मोर नॉलेज, एंड यू नो, एज जनरेशंस ग्रो, न्यू डायमेंशंस कम इनटू पिक्चर एंड प्ले. एंड क्या गलत है क्या सही है, वी आर नोबडी टू जज. इट्स हाउ वी अडेप्ट टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन. So how did you prepare for your UPSC exam and what were the biggest challenges during preparation time? First challenge was I belong to a very small city. एंड मेरे पास रिसोर्सेज की कमी थी, फाइनेंशियली भी, एंड मोर सो बुक वाइज. आई मीन यू नीड बुक्स, but I am extremely grateful. You must have heard of an institute called National Dairy Research Institute, Karnal, NDRI, which is a pioneer institute in dairy development, not in the country, but I believe in the world. They were so gracious. They let me allow to use the complete library without any charge for unlimited purposes. तो लाइब्रेरी मैंने वहाँ से यूज़ की. चैलेंज ये था कि स्मॉल टाउन से था, बट मेरे 2 फंडे बहुत क्लियर थे. 1, मुझे जो करना है हट के करना है. आई विल गिव यू ए टिपिकल एग्जांपल. उन दिनों इन अ पर्टिकुलर स्टेट इंसर्जेंसी की काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी. नाउ जो भी सवाल लिखता था वही सवाल लिखने, और फलां ऑथर ने ये कहा, फलां ने ये कहा, फलां ने ये कहा, फलां ने ये कहा. आई थॉट what the government is looking for is somebody who solves the problem. थ्योरी देने का क्या फायदा है? Let me solve the problem. तो इंजीनियरिंग में होता है ना QED, this is a problem, possible solutions, implications, positive negatives, QED, ये आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए. And then I wanted to be different. I did not join, with due respect to all the coaching classes. Even today I believe, अगर मेरे आज भी बच्चे हैं, I would not let them join any coaching class because of mass production. एक सवाल का एक ही जवाब अगर 100 बच्चे लिखेंगे, इफ यू आर एग्जामिनर, आप 2 पन्ने पलट के छोड़ दोगे. यू वांट समथिंग डिफरेंट. मैंने कोचिंग क्लास नहीं ज्वाइन. द थर्ड फंडा जो मैंने सीखा फ्रॉम जर्मन्स एंड जापानीज, हमारे यहाँ की बिल्डिंग बनानी है. गौरव, आपको घर बनाना है, हाँ भाई मिस्त्री बुला लिया, कल से ठोका पीटी चालू. आधा घर बन गया, अरे यार ये तो कील वहां लगानी थी, ये वहां लगाना था, वो चलता ही रहता है. नो, दीज पीपल दे वुड से ऑलराइट 24 month project, 18 months, 20 months we will spend just planning कहाँ क्या चीज जानी है. So for more than about I think it was 5 months, yes, for 5 months I did not study, just kept on indexing my notes.
ताकि एट वन गो मुझे कोई रेफरेंस चाहिए, रात के 1:30 बजे पढ़ रहे हैं, कौन सी चीज खाएं, मेरे को ढूंढनी ना पड़े, मैं कहाँ जाऊँ मुझे पता है वहाँ मिले। सो फॉर 5 months आई प्लान नॉट ओनली इंडेक्सिंग माई नोट्स, बट अगर 5 महीने बाद आप गौरव में से पूछते कि आज के अगले 7वें महीने के 8वें दिन रात के 3 बजे आप क्या कर रहे होंगे, मेरी डायरी आपको जवाब दे देती कि मैं ये उस दिन पढ़ रहा हूँ। सो प्लानिंग वॉज ए मेजर part. Reading the बाद में it automatically follows. So my suggestion would be to any aspirant, not only for IAS but for any service, be it private sector or otherwise, please plan. You should know what you are going to do in the next 2, 3, 4, 5, 6 months. Otherwise तुम हेवार बैठे, किसी ने फोन किया, अरे तूने वो चैप्टर किया ना, वो तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप अपनी सारी प्लान छोड़ के उस चैप्टर के पीछे बैठ जाते हो। देन नेक्स्ट स्टेज वुड बी एवरीबॉडी इज नॉट सपोज्ड टू नो एवरीथिंग। लेट मी प्रायोरिटाइज, मुझे इतने % नंबर लेने हैं, लेट मी फोकस ऑन माय की स्ट्रेंथ्स, बाद में जो टाइम बचेगा हम इसमें कर लेंगे। So can you share any memorable incidents from your early days in training at Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration? मेरे को आउटडोर एक्टिविटीज का शौक था। फाउंडेशन कोर्स में एक बार ट्रैक पे गए, आई डोंट नो कैसे हुआ कि जहां हम चल रहे थे ट्रैक पे, जब बहुत छोटी अबाउट 6 इंचेस की अगर आप पे बॉल रखने की जगह है तो यू होल्ड ऑन टू द माउंटेन और माउंटेन से चिपक के आप चलते हो विद योर बैक टुवर्ड्स द वैली। वो कैसे वो मिट्टी फिसलने लगी और मैं नीचे गिरने लग गया। मेरे साथ 2 बैचमेट्स थे, उन्होंने मेरे को खींच लिया, जान बच गई। तो उसके बाद से मेरा कॉन्फिडेंस आ गया। अब कॉन्फिडेंस आ गया तो डर लगने लग गया हर चीज में। अच्छा, हॉर्स राइडिंग जो था बिल्कुल मेरे रूम के नीचे था। मिस्टर वन ऑफ थरो जेंटलमैन, एक्सीलेंट ऑफिसर, जिन्होंने हमें सिखाया हाउ टू सिट एंड यूज ए फोक एंड नाइफ टू दैट एक्सटेंट, वो उन दोनों हमारे कोर्स डायरेक्टर थे। अब मुझे डर लगे घोड़े पे चढ़ने का, 6 फुट का घोड़ा, और नीचे राइडिंग नो, नीचे से उन्होंने आवाज मारनी, अंकुर नीचे आ जा। मैं डरूं कि घोड़े ने गिरा दिया, अच्छी वाली पढ़ाई करके हम पहुंचा हूँ। नाउ आई हैव टू फाइंड ए वे आउट। 3 इंस्ट्रक्टर थे, उसमें से 2 थे हरियाणा के। तब तक मुझे हरियाणा काटर लॉट हो गया। मैं दोनों को अलग लेके गया। मैं कहा भाई तुम हरियाणा में हो? हाँ जी। मैं कहा फैमिली हरियाणा में? हाँ जी। हरियाणा में कहाँ पड़ेगा? हाँ जी। मैं कहा मैं हरियाणा जा रहा हूँ सर जी। मैं कहा भाई मेरी शक्ल दिखा के हाजिरी लगा के मैं दौड़ जाऊंगा, कर दोगे? कर देंगे। तो मेरी हाजिरी फिर 2 साल लगती रही, मैं कभी घोड़े पे नहीं गया। अच्छा, मेरी भी अपनी लॉजिक जो मैंने कही, मैं कहा घोड़े तब चलते थे जब जीप नहीं थी, सड़कें नहीं थी। आप जीप चलवा लो मेरे से बेटर कोई जीप चला ले। ही ऑल्सो हैड ए बेटर लॉजिक कि भाई मैं तो कोई सड़क चलाने के थोड़ी कह रहा हूँ घोड़े, इट वाज टू गिव यू कॉन्फिडेंस। यस, यू कैन कंट्रोल एन अनकंट्रोलेबल स्ट्रॉन्ग एनिमल। वो कॉन्फिडेंस देने के लिए कर रहा हूँ। तो जद्दोजहद हमारी चलती रही, बट ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, उनसे बहुत सीखने को मिला। So what was your first posting and how did it feel to take a real responsibility for the first time? गौरव, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। My first posting was in a very important subdivision and I found कि वहाँ इतनी एनक्रोचमेंट है, मैं गाड़ी नहीं चला सकता। मुझे एनक्रोचमेंट क्लियर करनी थी। एक चीज मैंने शुरू से लेके चली थी कि if I have to succeed, be it a politician, be it police, be it the judiciary, सबको साथ लेके चलो। One day I called this important politician. I said, can you have a cup of tea? Yes. मैं कहा जी बैठ से 3-3:30 बजे बैठ गई। I said, Mr. X, आप खुद मानेंगे बाजार की हालत ये हो गई है, पार्किंग तो छोड़ दो, गाड़ी निकलती नहीं है, इनक्रोचमेंट है। कि हाँ जी वो तो है। मैं कहा मेरे को तोड़नी है। कि जी मैं होने नहीं दूंगा। मैं कहा क्यों? कि माई वोट्स विल गो ऑफ। ओके, लेट्स डू वन थिंग। मैं कहा जी मैंने आपको पहले ही बता दिया, सुबह आप 7 बजे कहीं बाहर दौरे पे चले जाओ, 3 बजे तक मैं तोड़ दूंगा, उसके बाद जो आपने करना है मेरा कर लेना। गेट इट डन। 7 o'clock ही लेफ्ट द टाउन। 7:30 आई गॉट होल्ड ऑफ 4 JCBs और सबसे पहले जो लोकल लीडर था, टॉप लीडर एक पॉलिटिकल पार्टी का, उसकी दुकान तोड़ी। 12 बजे तक मैंने पूरी मार्केट तोड़ दी। 3 o'clock दिस पॉलिटिशियन केम और उसके बाद अंकुर गुप्ता मुर्दाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद जिंदाबाद, बदल देंगे, खून खराबे कर देंगे, ये कर देंगे। 2 घंटे उन्होंने किया। 7 बजे बैठ के फिर हम दोनों ने इकट्ठे चाय पी। तो उससे ये सीखने को मिला 2 चीजें। ये दूसरी चीज एक और से मिली थी इससे कि सबको साथ लेके चलो, कॉन्फिडेंस लेके चलो, इज ऑलवेज बेटर। दूसरा जो एक डिफरेंट इंसिडेंट से पता चला, बट जो फील्ड की फीडबैक है वो एक पॉलिटिशियन को हमारे से बहुत ज्यादा पता है। मैं सोचता रहा हूँ मेरे पास CID रिपोर्ट कर रही है, ये रिपोर्ट कर रहा है, नहीं। पॉलिटिशियन एक ग्राउंड से जुड़ा हुआ आदमी होता है, उसकी खबर गलत नहीं होती है। तो ये मेरे को अपनी फर्स्ट पोस्टिंग में सीखने को मिला। एक और चीज मिली, हालांकि अनरिलेटेड, आई थिंक 3 weeks I had joined. Somebody called, I am such and such MP from Delhi. आपने एक पटवारी है, उसको चार्जशीट कर रखा है, ये कर दीजिए, वो ठीक कर दीजिए, उसका ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। पता नहीं कहाँ से 6th सेंस है, क्रॉस चेक, इस नाम को गारंटी नहीं था। कपल ऑफ डे लेटर द चीफ मिनिस्टर ऑफ माई स्टेट कॉल्ड।
पीएसएट के एसडीएम साहब बोल रहे हैं, सीएम साहब बात करेंगे। मैंने कहा नंबर दे तो मैं कॉल बैक करूंगा। कि मतलब आई वांट टू क्रॉस चेक द नंबर कि सीएम है कि नहीं है। और उस दिन फोन पटक के कर दिया। 5 मिनट बाद डिप्टी कमिश्नर फरीदाबाद कॉल्ड मी, बेटा आजा। मैं गया। व्हाई डिड यू रिफ्यूज टू टॉक टू द चीफ मिनिस्टर? You have been in 2 months of service. मैं कहा सर, I don't recognize his voice. How do you know he's the chief minister? तो then in front of me the deputy commissioner called the chief minister कि sir, he's a young boy. And the CM was so gracious and understanding कि नहीं, I understand. इसका तो एक बार धोखा हुआ था तो इसने इसलिए मेरे से बात करने को मना कर दिया because he doesn't recognize my voice. तो Gaurav, I mean every day you used to learn something new and interesting. So what was the biggest challenge you faced in your initial years of service? चैलेंज गौरव आया नहीं। एक चीज जो मैंने लेके चली थी कि एवरीबडी इज नॉट सपोज्ड टू नो एवरीथिंग इवन टिल डेट। मुझे कोई चीज नहीं समझ आती ना, आई गो एंड सिट नेक्स्ट टू द क्लर्क एंड टेल हिम कि भाई ये क्या चीज है, मुझे समझा दे। मुझे ये नहीं होता कि अरे क्लर्क से मैं सीख रहा हूँ, 35 साल की नौकरी होगी, नहीं, वो चैलेंज नहीं आया। हाँ, चैलेंजेस टू द पब्लिक से भी कभी नहीं आया, पॉलिटिशियंस का मैंने बता दिया नहीं आया। So you have served in multiple key departments: public works, civil aviation, food and supplies, agriculture and farmer welfare. How do you adopt in such diverse responsibilities? गौरव एज ए शेयर्ड, मुझे सीखने में शर्म नहीं है। आई टेक इट कि मुझे पहला महीना सीखना है। सीखने के बाद मेरे फंडे क्लियर होते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो गवर्नमेंट सिस्टम तो सेम ही है, बीट एनी डिपार्टमेंट इज बेसिकली द पर्टिकुलर डोमेन नॉलेज ऑफ ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। एंड इफ यू डोंट हैव एनी पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट, फिर आपको ऑफिसर्स भी बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। So can you share an inspiring story from your tenure that made you realize the power of public service? गौरव बहुत है, मैं सिर्फ शॉर्टली 3 कहूंगा। पलवल, अंबाला, सरसा, तीनों जगह डेड बॉडी सड़क पे, रास्ता रोको, फायरिंग चल रही है, कोई आगे जा नहीं पा रहा है। बट बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट विच आई हैड बिल्ट, तीनों जगह मैंने कहा मैं जाऊंगा, मैं बात करूंगा एजुकेटर से। पुलिस ने कहा साथ चलेंगे, मैं कहा बिल्कुल नहीं, अकेले जाऊंगा, किसी गोली मार देंगे। मैं कहा तुम जाओगे मेरे साथ तो जरूर मार देंगे। अकेले गया, I gave them a word कि justice will be done, and in every place basically क्या होता है, वो डेड बॉडी को जलाते नहीं है, then it becomes an issue. We wanted to be cremated first. Yeah, all right, then we'll sit and solve whatever issues are. तो रास्ता खुल गया, dead body was cremated, and I fulfilled my promises to that extent. Even if I had to fight with the topmost bosses, I did so. So that reputation helped me a lot. From one incident to second to third, yes, if he says something, he means it. And एक दूसरा जो मुझे बहुत अच्छा लगता था, ये एकेडमी में सीखा। हमारे जो फौजी भाई हैं, इनको बहुत कम छुट्टी मिलती है। वो छुट्टी में भी आधा टाइम ट्रैवलिंग में लग जाता है। ये वैसी टेंशन में है, कोई ठंड में बैठा है, कैसे बैठा है, घर से एक भी चिट्ठी आ जाती है जी पड़ोसी तंग कर रहा है, पड़ोसी ने कब्जा कर लिया, पड़ोसी ने ये कर लिया, दे गेट एक्सट्रीमली एजिटेटेड। तो मेरा ये था कि अगर मेरे रूम के बाहर मिलने वाले हैं, चाहे उसमें आप गौरव भी बैठे हैं या कोई और भी बैठे हैं, एमएलए भी बैठे हैं, और अगर एक फौजी आ गया, ही विल गेट द टॉप अवार्ड। दुआएं बहुत मिली। एक रियल एग्जांपल, मैं एसडीएम पोस्टेड था, माय वाइफ वाज एक्सपेक्टिंग माय डॉटर, शी वाज एडमिटेड इन पीजीआई। रात के 7 बजे की बात है, उन दोनों को वो तो होता नहीं था। सडनली मेरे पास एसटीडी मिला के फोन आया कि बोथ योर वाइफ दे वर इन चंडीगढ़ पीजीआई, आई वाज इन पलवल, कि दे आर इन डेंजर। दोनों की लाइफ का पता नहीं है। मैं रात को 7 बजे वहां से स्टार्ट किया। पलवल के उन दोनों 7-1 घंटे लगते थे, पीजीआई रात को पहुंचा। गॉड वॉज वेरी काइंड, दोनों बच गए। मुझे पता चला बाद में कि मेरे जाने के बाद एसडीएम पलवल की कोठी तो बहुत बड़ी होती थी, अब शायद डिप्टी कमिश्नर की होगी 6-7 एकड़ की। हजारों लोग गाँव के ठंड में, दिसंबर की बात है, कि जी मोमबत्ती लेके बुक्कल मार के बैठे रहे और भगवान से दुआ करते रहे। इससे बड़ा और क्या गिफ्ट मिलेगा? आइए, मेरी वाइफ बची, मेरे बच्चे बचे, बेटी बची, एंड लोगों को भी अच्छा लगा होगा। ये कोई रैली तो थी नहीं कि पकड़ के लाए होंगे, खुद आके बैठे हुए। So which role has been the most challenging yet fulfilling for you and why? Well, let me put it differently. You could ask what is the field which I really enjoy working in. That is IT and renewable energy. Renewable energy की जितनी policies हैं मेरी लिखी हुई हैं। If you just Google parallelly, चाहे solar policy हो, चाहे biomass policy हो, चाहे LED policy हो, whatever, तो मेरी लिखी हुई हैं। And IT, I keep myself obsessed even now. In fact, I think I'm quite IT savvy even today. So what does a typical day look like for an additional chief secretary managing multiple portfolios? At the end of the day, Gaurav, if I were to define IAS, it is not meeting targets, it is man management. कितनी भी schemes हो,
आप खुद इम्प्लीमेंट करते नहीं हैं, आप इम्प्लीमेंट करवाते हैं, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. सो इट इज हाउ यू मैनेज बीट योर पर्सनल स्टाफ. लाइक पर्सनल स्टाफ इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक जनरल पब्लिक के लिए. अगर आपका पर्सनल स्टाफ बदतमीज है, आपकी रेपुटेशन भी खराब होगी. सिमिलरली कोई भी आप पोर्टफोलियो देख रहे हो, चाहे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के तौर पे, चाहे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चाहे एसडीएम, चाहे वो भी काम तो आपको औरों से लेना है. सो इट इज हाउ यू मैनेज द पीपल, नंबर वन. नंबर टू, हाउ यू मैनेज द टाइमलाइंस. भाई मैंने कुछ कह दिया, ठीक है, अच्छी बात है, अब टाइम से पूरा ही नहीं हुआ तो कोई फायदा कोई नहीं है. जैसे मेरा एक बड़ा क्लियर फंडा था कि माई मीटिंग विल नॉट गो ओवर 30 मिनट्स. इफ इट डज, दैट मीन्स आई डू नॉट नो माई सब्जेक्ट. मीटिंग से पहले मेरी इतनी तैयारी होती थी, मैं खुद 2 घंटे लगा के कि ये डिस्कशन पॉइंट्स हैं, ये एक्शनेबल पॉइंट्स हैं, इन पे मैंने इनपुट लेनी है कि भाई डू वी एग्री ऑलराइट, ये डेडलाइन है, खत्म. So how has this journey changed you personally, and how different is Mr. Ankur Gupta today compared to when he started his IAS journey? गुस्सा बहुत कम हो गया, एक एक्सेप्टेंस आ गई है. एक वो सेइंग थी, गॉड ग्रांट मी द स्ट्रेंथ टू चेंज द थिंग्स आई कैन, द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कांट चेंज, एंड मोर इम्पोर्टेंटली द विजडम टू नो द डिफरेंस. तो लोगों की मैंने अच्छाइयाँ देखी हैं, शॉर्टकमिंग्स देखी हैं, ये देखा है कि कहाँ कुर्सी को सलाम होता है, कहाँ आपको सलाम होता है. बहुत कुछ सीखने को मिला है एंड इट्स अ ग्रेट जर्नी. यस, एक जरूर रिग्रेट है, डॉक्टर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, एंड मे बी एनी अदर प्रोफेशन और बिजनेस, यू कैन कीप एंड कंटिन्यू वर्किंग. हियर आफ्टर 60 व्हाट डू यू डू? यू स्टिल यंग. वो जरूरत है. So as we have discussed the enroachment case, so were there any incidents where there was pressure from the governance, and how did you handle that particular pressure? Gaurav, be it private sector or government sector, I have worked in both. Pressure तो सब में रहती है. Two things matter. One, if you are able to convince them. Two, if they are convinced कि you are convinced and आप ये करेंगे ही करेंगे, तो फिर they also understand कि भाई ये करेगा, एंड दे देन डोंट प्रेशराइज यू. और ये हर जगह लाइफ में अप्लाई करता है. आई मीन लेट्स नॉट सिंगल आउट एनी पर्टिकुलर सर्विस. प्रेशर्स रहते हैं, बट यू हैव टू बी श्योर ऑफ योरसेल्फ. एंड यस, ऑब्वियसली इफ यू डोंट हैव ए वेस्टेड इंटरेस्ट, if you have a vested interest, obviously then you are at a weak footing. So what is the biggest misconception people have about being an IAS officer? In or unaccessible. So what are the key qualities one should possess to be a successful bureaucrat? One should try to place oneself in the shoes of the person who is coming to meet you. Because एक दिन आप वही थे और एक दिन आप वही फिर हो जाएंगे. फिर आपको कैसा लगेगा जब आप जाएंगे, किसी से मिलेंगे, कोई आपसे मिलेगा नहीं, या तमीज से बात नहीं करेगा, या आपकी बात सुन के उस पर एक्ट नहीं करेगा. तो लेट अस नॉट फॉरगेट हम कहाँ से आए थे और कहाँ जाना है. So who should consider a career in the civil service and who shouldn't? When I passed my MBA, the best company was HLL, which later became Procter & Gamble. तो एक सवाल था कि रात को थक के सो के, when I look back over my day, मैं क्या सोचूंगा? Today I sold 30,000 toothpaste, 1,000 Lux soaps. Yeah, today I helped 2 young widowed women जिनकी दुआएं मिलेंगी, which will give me more happiness and help me sleep peacefully. तो अगर आपको satisfaction चाहिए, but then be prepared, people are not going to appreciate you. हमारी कमियां हैं, मैं ये नहीं कहता, बिकॉज अगर हम अपना काम करते हैं, ये तो हमारा काम ही था. नहीं करते हो इसलिए पीपल गेट एंग्री, एंड राइटली सो. बट उससे ज्यादा जो मैंने अभी आपसे शेयर किया था, आफ्टर 60 व्हाट डू यू डू विद सो मच एक्सपीरियंस इन योर हैंड? इफ यू आर ऑन योर ओन, इफ यू आर वर्किंग 12 hours a day, you are working for your own benefit, and there is no retirement limit. तो ये this is a very very personal call. हाँ, एक जो ऑरा है, obviously that attracts. To be very honest, वो जरूर attract करता है. That you are somebody in a country of so many crores of people, you are among the 3, 4, 5,000 people. But मेहनत बहुत. So what's your advice for young aspirants who feel demotivated during UPSC preparation? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मेरे ये यंग बच्चे लोग बुरा न माने, ज़्यादातर इसलिए लोग बैठते हैं ड्यू टू सोसाइटी प्रेशर, चाहे वो पेरेंट्स का हो, चाहे वो रिश्तेदारों का हो, चाहे वो फ्रेंड्स का हो. नहीं. 2,
आप अपनी कैपेबिलिटी असेस करो, यू थिंक आप ये कर पाओगे तभी करो। 3, कीप ए बैकअप ऑप्शन। मेरा इतना दिल दुखता है जब मैं सुनता हूँ, चाहे वो कोटा हो चाहे कोई हो, वो IIT की तैयारी कर रहा हो, कुछ कर रहा हो, सच ब्रिलियंट एस्पायरिंग फ्यूचर ऑफ इंडिया, दिस इज नॉट डन। हमारी स्ट्रेंथ ही तो हमारी यंग मैन पावर है, सो इंटेलिजेंट, सो एंटरप्राइजिंग, कि किसी के प्रेशर में मत करना, डू इट एज इफ यू आर एंजॉयिंग इट। जैसे किसी ने कहा था, एंजॉय योर वर्क, इफ यू डोंट देन लीव इट। सो प्रेशर में नहीं, तैयारी करनी है, एंजॉय करें एंड बैकअप जरूर रखें। आई थिंक दैट्स इट। So, what is the best way to start preparing for civil services coaching or self-study? इसमें काफी कुछ तो गौरव है, I've already told you. Please take it is about 18 months to 24 months process. पहले महीने चाहे वो 3 लगे आपको 5 लगे, please plan. Then please focus. Now, what does focus mean? It's a very loosely used term. मैंने सारा कुछ छोड़ दिया था, but then one needs a diversion. मेरे कमरे में किसी को एंट्री नहीं थी, मेरे पेरेंट्स को. Now, how do I reward myself? मैं रात के 2 बजे तक पढ़ रहा हूँ, सुबह फिर 7 बजे लग गया, एंड फॉर मंथ्स ऑन एंड। तो रिवॉर्ड मेरा कैसा होता था, भाई अब शेव नहीं करनी। 5 दिन तक ऐसी खुरक मचती थी, ठीक है ये अगर मैंने चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो शेव करूंगा। अच्छा जी, आई लव टेकिंग बाथ ट्वाइस अ डे। नहाना नहीं है, बॉडी से बदबू आ रही है, ये मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही, तो आई विल रिवॉर्ड यू, यू कैन टेक योर बाथ। तो आपको खुद ही अपने रिवॉर्ड ढूंढने पड़ेंगे, बिकॉज जैसे ही आप बाहर गए तो आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो प्लान करें, खुद को रिवॉर्ड देखें, एंड प्लीज 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 बी डिफरेंट, डोंट बी ए रन ऑफ द मिल। So, how should one approach the interview round for an IAS selection process, and what are do's and don'ts? ये मेरा फोटे है, एंड दिस इज समथिंग विच आई कैन गारंटी टू एनीवन, बट ये मैं फंडा उसी को दूंगा हु इज रियली सीरियस, हु थ्रू यू कैन कॉल मी, एंड इफ आई एम कन्विंस्ड कि द कैंडिडेट इज सीरियस, ये गुण मैं सिखा दूंगा। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट गोल है। जैसे अगर आप गोल्फ खेलते हैं, जनरली लोग प्रैक्टिस करते हैं, लॉन्ग ड्राइव मैंने 200 यार्ड मार दिए, 150 मार दिए, वो भूल जाते हैं, पटिंग ग्रीन पे पहुंच के तो 3 मारते हो आप, 2-2 फुट वाले, वहां शॉर्ट गेम पे तो फोकस कर लो। ये तो मेरा ट्रेड सीक्रेट है। आई विल शेयर विद समबडी हु इज सीरियस। So, what role do civil servants play in shaping the future of governance? गौरव, अब आज आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ सर्विस, इसमें पर्सनल ओपिनियन, द फ्यूचर cannot be defined by a civil servant. It is a mixture of both the political governance, the civil governance, as well as the citizen. With so much awareness coming in through social media, well, it has a negative effects also, but it is a joint venture now. अगर कहीं कोई डिलीवरेंस नहीं होती है तो सिटीजन भी मुंह उठा के घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से, लैपटॉप से आपको 20 मैसेज डाल देगा या सोशल मीडिया पे डाल देगा। मैं एक चीज कहता हूँ, जो मैं कॉलेज में जाता था, हम कहते हैं एक्स कंट्री इज गुड, वाई कंट्री इज गुड। आई डोंट एग्री। हवा वो सेम है, मिट्टी सेम है, व्हाट्स द डिफरेंस? Is the people. The day we start loving and appreciating our country, you are the best. There are many countries where citizens feel proud. This is my country. मैं आपको एक एग्जांपल इतना तो कह ही सकता हूँ। I live in चंडीगढ़। चंडीगढ़ की आपने अगर सड़कें देखी हो, मजाल है। कोई सब अपनी गाड़ी में डस्टबिन रखते हैं, कोई भी रैपर सड़क पे नहीं फेंकते, घर का कचरा सेग्रीगेट करके डालते हैं। दे फील प्राउड कि हमारा शहर है। अगर यही हम सारे ही फील प्राउड करें पूरे कंट्री के लिए, जैसे और बहुत कंट्रीज करते हैं। मैंने गौरव काफी कंट्रीज देखी हैं, जितनी नेचुरल ब्यूटी हमारे कंट्री में किसी और कंट्री में नहीं है। आप स्विट्जरलैंड की बात कर लो, किसी की बात कर लो। हमारे यहाँ एक तो इंफ्रा की प्रॉब्लम है जो अब बहुत हद तक ठीक होती जा रही है। उससे ज्यादा प्रॉब्लम है सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। हमें नहीं लगता कि भाई यार ये हमारी चीज है, हम इसको जितना संभाल के रखेंगे, सुंदर बना के रखेंगे, पर आ रहा है। जैसे हमारी यंग जनरेशन है, इट इज वेरी प्रोग्रेसिव एंड वेरी पॉजिटिव। मतलब मुझे वो देख के बहुत खुशी होती है। हमारा डेमोग्राफिक डिवीजन तो है ही है, उसके अलावा आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट आवर कंट्री, बिकॉज अ कमिंग जनरेशन जो आगे लीड करेगी इस कंट्री को, दे लव देयर कंट्री एंड वो सोचते हैं कि हमें अब इकोनॉमी वाइज हम देखें, वी आर अमंग द टॉप नेशंस एंड स्टार्टअप आप देख लो। अब इसमें मेजर रोल इज नॉट ओनली ऑफ द गवर्नमेंट तो कर ही रही है, इन यंग बच्चों का भी है। खास तौर पे हमारी स्ट्रेंथ इस वक्त वो बच्चे हैं हु आर नॉट अफ्रेड कि वी कैन नॉट स्पीक परफेक्ट इंग्लिश, बट उनमें पूरा जज्बा है, वो दुनिया में कहीं जाके लड़ सकते हैं, नई चीजें कर रहे हैं। सो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट आवर कंट्री। So, what has been the biggest takeaway from working in the government
for over 30 years? मैं और एक स्टोरी शेयर करता हूँ. There was a town like Chandigarh where I live, and a small hill town like Morni. Suddenly people came to know कि वहाँ एक साधु संत आया है, and it is said that future holds no mysteries for him. You go and ask him, he can answer all your questions. So there was a young Turk, smart, slightly naughty, just like you, who said, "Let me make a fool out of this Baba." He took a small pigeon in his hand, thumbed on the pigeon's neck, climbed up the mountain, and went to the Baba. "Baba, can you tell me whether this pigeon is alive or dead?" The young Turk thought, if the Baba says is alive, and slowly squeeze the neck, pigeon will be dead. And if he says no, it's dead, I'll open my hand and it will fly away. The Baba kept on looking at him, kept on smiling, then said, "My son, the solution to your problem lies in your hand." So here also it applies. The solution to our problem lies in our hand. हम खुद तो गलतियां करते हैं, फिर गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं और गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं. अरे गवर्नमेंट तो आपकी बनाई हुई है, आप अपने कर्तव्य से निभाएं. लुक एट द फंडामेंटल ड्यूटीज. हम फंडामेंटल राइट देखते रहते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी तो किसने पढ़ी नहीं. हम अपना कर्तव्य करें. यस, then blame the government. And nobody is perfect, obviously. But it's been a wonderful journey, a very learning experience. बहुत लोगों का प्यार मिला है, गालियाँ भी मिली हैं, obviously मिलनी चाहिए, part of the job. But at the end of the day, again I am on the verge of repeating. Not only I am very proud of my country, but I have a very great vision and I see a very bright future for our country. So, do you think technology and AI will change the role of bureaucrats in the future? Personally, I am not in favor of technology. Yes, AI. I'm not in favor of AI. आप अपनी खुद की जो mental capability है, वो एक AI को दे रहे हो, which cannot understand all the nuances. And if you read Gaurav, they may be fiction books, but I'm afraid for my next generation. जब तक AI उस लेवल पर पहुंचेगी, शायद हम लोग रहे ना रहें. AI should be our tool, but I'm afraid it will become a master. So that scares me. So now it's rapid round. So one word that describes your journey in bureaucracy. A learning process. Your biggest strength as an IS officer. Compassion. A book you would recommend to every civil service aspirant. My last interview. The most challenging decision you have ever made in your career. Up here I'll have to tell you a story. Do you remember Kandahar hijacking? A few months after that, I was posted as Deputy Commissioner. I got a call from the station commander of a force station. Another plane has been hijacked. What do? I called my immediate boss. It was about 11:30 in the night. Talked to the higher up. Spoke to the higher up. Talked to the higher up. I spoke to the highest up. Why are you bothering me? You're the Deputy Commissioner. Take a decision. I knew either way I'll be cooked. Because if the plane landed and I let it go, I'm at fault. I asked the station commander Air Force. He said, "No, you are the head of the district. You have to decide." And if I said, "Shoot," many persons would have died. Again, I'm cooked. Now, by that time, it was about 1:35 in the night. I'm very precise because I remember it very clearly. I called up the station commander. I said, "All right, I'll be posting fire tenders, everything, ambulances, shoot the tires, storm the plane. We will lose maybe a few persons, save the rest." So that was a toughest decision. So tea or coffee? Coffee. Because tea has many nuances and nobody knows how to make a perfect cup of tea. Coffee is coffee, you can't change it. So if I say define yourself in one line, what would be that one line? The grassroots people love me. So the last question, what would you say to the young generation dreaming of the future in governance and public service? Be sure why you want to be there. For your personal benefit, for an aura, for public service, so that you are not disappointed. And if you are intelligent, capable in any field, please go and excel yourself outside the government. So Mr. Ankur Gupta's journey is an aspiration to countless young minds inspiring to serve the nation. His unwavering commitment to governance, his adaptability across diverse roles, and his deep-rooted passion for public service makes him a remarkable mentor. We thank you for sharing your invaluable insights and experience with us today. At Believe in Future Amazing Mentor,
We celebrate leaders like him who are shaping the world and inspiring the next generation. Thank you for joining us, and until next time, stay inspired, stay committed, and always believe in future. Thank you very much, sir, for your precious time. Pleasure, Gaurav.